Hello students, so we would be moving ahead and we would be discussing lipids again. But today we would talk about derived lipids. In the previous lecture we did talk about the conjugate lipids. Okay, और आज बात करेंगे derived lipids के बारे में, ठीक है? Derived lipids. ठीक है, now derived lipids की बात करें तो interestingly they are not actually lipids, okay, because they are not formed by esters of not formed by esters of fatty acid and alcohol. They are not formed by the esters of fatty acid and alcohol. ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो do not have, they do not have fatty acid in the structure. They do not have fatty acids in the structure. ठीक है, but they behave like, okay, they behave like the lipid or they behave like the fat. समझ में आया? तो derived lipids are not actually lipids, okay, because they are not formed by esters of fatty acids and alcohol. They are not formed by the esters of fatty acid and alcohol, okay, and they do not have fatty acid भी उनके पास नहीं है, ठीक है? ठीक है, so but they have nature like lipid, okay, और या फिर आप बोल सकते हो they are lipid like substances. They are not lipids, but they are lipid like substances because they are not formed by the esters of fatty acid and alcohol. They do not have fatty acid. ये बात दिमाग में रखना है. So these are derived lipids. These are not fats or lipids, but they behave as they are lipid like substances. They have nature like lipid. ठीक है? They have nature like lipids. So I'll talk about one of them, that is terpenes. Okay, terpene की अगर बात करें तो terpene consists of isoprene ring. It consists of isoprene ring, that is C5H8. Okay, C5H8, that is the isoprene ring. तो मैं terpenes के बारे में बात करूंगा. जैसे turpentine oil है, that is a terpene. विटामिन E है, that is a terpene. So we'll talk about terpenes. So some terpenes are जैसे कि विटामिन E है. ओके, विटामिन E इज एन एंटीऑक्सीडेंट. इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट. एक और चीज जो है दैट इज लाइकोपीन. लाइकोपीन का प्रेजेंस है जो पके हुए टमाटो होते हैं. ओके, दैट इज द रिप टमाटो, प्रेजेंट इन रिप टमाटो. और ये दोनों मैंने इसलिए साथ में लिखे हुए बिकॉज ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है. They work as antioxidant. Vitamin E and lycopene, which is present in ripe tomatoes, they work as antioxidant. क्योंकि अपनी बॉडी में काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन रेडिकल रिलीज होता है. तो ये जो फ्री ऑक्सीजन है या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन रेडिकल है, ये क्या कर सकता है, ये दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शंस में इंटरैक्ट करके प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, दूसरे रिएक्शंस में डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है. सो उसको विटामिन ई एंड लाइकोपीन क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे
तो इसलिए विटामिन ई एंड लाइकोपीन दे आर टर्म्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दे रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, they react with free radical oxygen, vitamin E and lycopene, इसलिए we have termed it as antioxidant कहा गया। ठीक है, so lycopene जो मैंने यहाँ पे लिखा है that is found in ripe tomatoes, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी किस चीज में देखने को मिलेगा, so this is found in terpenes, they are found in natural rubbers, they are found in natural rubber and टर्पेंटाइन ऑयल या फिर पाम ऑयल। ठीक है, सो यहाँ पे टर्पीन्स प्रेजेंट है, टर्पीन्स इज फाउंड इन द नेचुरल रबर, टर्पेंटाइन ऑयल है, विटामिन ई है, लाइकोपीन है। आपको याद रखना है विटामिन ई एंड लाइकोपीन्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे रिएक्ट विद फ्री रेडिकल ऑक्सीजन विच इज फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, क्लियर है। अब टर्पीन्स की अगर मैं जनरल में बात करूं तो टर्पीन्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक कॉनिफर्स में टर्पीन्स लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो क्या करता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके प्रेडेटर्स से दूर रखता है। ओके, दे हैव दिस फाउल स्मेल। मैं अब करता हूं, मैं टर्पीन्स के बारे में फिर से लिखता हूं। Terpenes are chemical substances terpenes की अगर बात करते हैं तो terpenes are chemical substances, they are chemical substances produced by, I'll write it specifically, conifers and insects। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स है ये क्या करते हैं इन कॉनिफर्स एंड इंसेक्ट्स को prevent them from predators। ठीक है, prevent them from predators, so that is terpenes। ठीक है, so terpenes are chemical substances produced by plants, specifically conifers प्रोड्यूस करते हैं और इंसेक्ट्स में भी प्रोड्यूस होता है। और ये केमिकल सब्सटेंस क्या करेगा इन ऑर्गेनिजम्स को, कॉनिफर्स को, इंसेक्ट्स को क्या करेगा बचा के रखेगा फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, we'll talk about sterols। ओके, स्टेरॉल्स की अगर बात करते हैं तो उसका एक एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल। I'll talk about sterols। ठीक है, स्टेरॉल्स की अगर बात करें तो स्टेरॉल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेरेन न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेरेन न्यूक्लियस एंड अ साइड चेन। ठीक है, तो जो मैंने ब्लैक में दिखाया है, तो क्या रब दिस डाउन, मैंने जो ब्लैक में दिखाया है दैट इज नोन एज स्टेरेन न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज स्टेरेन न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है स्टेरेन न्यूक्लियस। ओके, और ये जो मैंने ग्रीन में दिखा रखा है दिस इज नोन एज दी साइड चेन, दिस इज नोन एज दी साइड चेन। ठीक है, तो इसके पास कितने कार्बन होते हैं स्टेरेन न्यूक्लियस के पास, तो काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। तो स्टेरेन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन्स, और जो साइड चेन होती है इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 कार्बन्स, इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 कार्बन्स। ठीक है, सो स्टेरॉल्स में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आपको स्टेरेन न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जिसके पास 17 कार्बन होंगे और जो साइड चेन होगी उसके पास 8 से 10 कार्बन होंगे।
ठीक है। सो मैं बात करता हूं एक स्टेरॉल के बारे में, दैट इज कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल की बात कर लेते हैं। सो कोलेस्टेरॉल का अगर फॉर्मूला अपन देखें, सो दैट इज C27H45OH, ठीक है। C27H45OH, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कोलेस्टेरॉल, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑल्सो। तो देख लो, स्टेरॉल में ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज स्टेरान न्यूक्लियस, जिसके पास 17 कार्बन होते हैं, और जो साइड चेन इसके साथ अटैच होती है उसके पास 8 से 10 कार्बन होते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जांपल ऑफ स्टेरॉल, दैट इज कोलेस्टेरॉल, हैविंग अ फॉर्मूला C27H45OH, ठीक है। सो कोलेस्टेरॉल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ज़ूस्टेरॉल, it is also known as ज़ूस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जो है, फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, तो द फॉर्मूला इज C27H45OH, okay, that is the chemical formula of cholesterol, as it is only found in animals. Cholesterol is only found in animals. As it is only found in animals, it is also known as ज़ूस्टेरॉल। क्या कहा जाता है? ज़ूस्टेरॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म में दे रहा हूं आपको। इट इज ऑल्सो नोन एज ज़ूस्टेरॉल because it is only found in the animals. Okay, animals में कहाँ देखने को मिलता है? So found in the cell membrane. Found in the cell membrane of animals. Cell membrane of animals. ठीक है, काम क्या करता है? It helps to stabilize. It helps to stabilize lipid. It helps to stabilize lipids present in membrane. It helps to stabilize the lipids which are present in the membrane. ठीक है, समझ में आ रही बात? So it is only found in the animals, इसलिए अपने नाम दिया ज़ूस्टेरॉल। Found in cell membrane of animals. Okay, helps to stabilize the lipid present in the cell membrane. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। Okay, it is the precursor of steroid hormones. Various steroid hormones में नाम लिखता हूं। It is the precursor of all या फिर various steroid hormones, जैसे कि we have progesterone, ठीक है, we have aldosterone, we have estrogen, ठीक है, and we have estrogen हो गया, aldosterone हो गया, progesterone हो गया, okay, and the one मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन है, आल्डोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब क्या है? ये सब आपके स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स है। ओके, दे आर ऑल योर स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, सिंपल एंड इजी। कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। इट इज ऑल्सो द, मैं रब कर देता हूं, पॉज करके आप लिख लो। ओके, इट इज ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी। प्रीकर्सर का मतलब क्या है? विटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है या विटामिन डी उससे ड्राइव हुआ। ठीक है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स।
है ना, आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था बाइल सॉल्ट्स के बारे में कि बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो एक बाइल सॉल्ट का मैं नाम लिखता हूँ, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोकोलेट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट इज अ बाइल सॉल्ट। दूसरा मैं लिखता हूं सोडियम टोरोकोलेट। क्या है? सोडियम टोरोकोलेट। और आपको बाइल सॉल्ट्स के बारे में, बाइल सॉल्ट्स करते क्या है? सो बाइल सॉल्ट्स का मेन काम है दैट इज एमल्सिफिकेशन। क्या करना? emulsification of fat, that is breaking down the fat, breaking the big globules of fat into smaller globules, that is the work of bile salt। तो bile salts के दो नाम मैंने लिख दिए, that is sodium glycocolate और दूसरा नाम मैंने लिखा है that is sodium taurocolate, ठीक है। these are all bile salts जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? emulsification of fat, ठीक है। दूसरी एक बात मैंने लिखी क्या? कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी, ठीक है। और क्या काम करता है? ठीक है। नाउ जैसा बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल हेल्पफुल तो है, बट हाई अमाउंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल। अगर ज्यादा अमाउंट कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में आ जाता है तो इट इज हार्मफुल, ठीक है। समझ में आ रही बात? नाउ किस तरीके से हार्मफुल है? तो अगर ज्यादा अमाउंट आ जाता है तो ये क्या करेगा? ये आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएगा, इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन दी ब्लड वेसल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज दी आर्टरी, अगर ये आर्टरी है, ओके, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? इस तरीके से आर्टरी में बिल्डअप हो जाएगा। इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू ईटिंग अ लॉट ऑफ ऑयली फूड, ओके, जंक फूड काफी आप खा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? आपके आर्टरीज के अंदर जम जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल। व्हाई? बिकॉज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल takes place in arteries, okay, deposition of cholesterol takes place in the arteries and forms plaques। क्या बनते हैं? प्लेक्स बनते हैं। तो ये जो मैंने दिखा रखा है ये प्लेक्स, दिस आर प्लेक्स, ओके। तो ये किससे बने? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से बने। समझ में आ रही बात? तो जब सी नॉर्मल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग इज गुड, ऐसा कहा जाता है ना, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज पॉइजनस टू द बॉडी। तो उसी तरीके से जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल अमाउंट में है तो काफी सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बट जब कोलेस्ट्रॉल का प्रोपोर्शन बिकम्स मोर देन एक्सेसिव, काफी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? तो वो एक काम करेगा, आर्टरीज में जमा होने लग जाएंगे, स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द आर्टरीज, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज प्लेक्स। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहां पे आएगी? कौन सी चीज पे इंपैक्ट आएगा? तो आपके ब्लड फ्लो पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई वो भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई पे भी इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। सो जो डिसीज यहां पे क्रिएट होती है दैट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या है नाम डिसीज का? सो द नेम ऑफ द डिसीज इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टेक्स प्लेस इन आर्टरीज एंड फॉर्म्स प्लेक। नॉर्मल अमाउंट में है तो कुछ नहीं है, बट अगर आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा ऑयली चीजें, ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो तो उस केस में डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टेक्स प्लेस इन द आर्टरीज एंड फॉर्म्स प्लेक्स,
जिसकी वजह से आपके ब्लड फ्लो पे इम्पैक्ट आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेथार्जिक फील करोगे क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सही है। अपार्ट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल का एक्सेसिव अमाउंट एक और चीज कॉज करता है, दैट इज गॉल ब्लेडर स्टोन्स, जिसे गॉल स्टोन्स कहा जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज गॉल स्टोन्स। ठीक है, मतलब पथरी भी आपको हो सकती है अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रोपोर्शन हद से ज्यादा है। ठीक है, सो आपने प्लस पॉइंट देख लिए कोलेस्ट्रॉल के और आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिए। सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द आर्टरीज एंड फॉर्म्स प्लेक, इसे प्लेक कहा जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो हैंडर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से विल बी फीलिंग लेथार्जिक। ठीक है, चले आगे। सो अब आई टॉक अबाउट फाइटोस्टेरॉल। ये मैंने कोलेस्टेरॉल की बात करी, ये एनिमल्स में प्रेजेंट था, तो ये मैं फाइटोस्टेरॉल, फाइटो PHYTO, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद प्लांट्स। तो यार ये कहां देखने को मिलेगा? सो दिस इज अ प्लांट कोलेस्टेरॉल, और आप बोल सकते हो दिस इज अ प्लांट स्टेरॉल। ओके, सो वी हैव another is phytosterol. ओके, फाइटोस्टेरॉल में आपको फाइटो तो पता ही है, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट। तो ये क्या है? दिस इज प्लांट स्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल इज प्लांट स्टेरॉल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें सो यहाँ पे आएगा कैंपिस्टेरॉल। ओके, वी हैव कैंपिस्टेरॉल है, स्टिग्मास्टेरॉल है, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल में। We have stigmasterol, we have camptosterol, okay, and we have one more, that is sitosterol. ठीक है, ये 3 टाइप के प्लांट स्टेरॉल्स है। ठीक है, स्टिग्मास्टेरॉल, कैंपेस्टेरॉल एंड सिटोस्टेरॉल। ठीक है, दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय, आपको याद रखना है, ओनली प्रोड्यूस्ड बाय यूकैरियोटिक सेल्स। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स ही इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, एंड दे ओनली फाउंड इन द प्लांट सिस्टम एंड लिख दिया इट्स अ प्लांट स्टेरॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो फाइटोस्टेरॉल्स है ना, अगर इनको डाइट में इंक्लूड किया जाए तो ये काफी अच्छा काम करते हैं। दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, प्रिवेंट्स फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज से बचाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन कैंसर। ये क्या करते हैं? एपोप्टोसिस ऑफ कैंसर सेल आपको देखने को मिलेगा। ओके, इफ आप फाइटोस्टेरॉल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करोगे। ठीक है, सो प्लांट स्टेरॉल है, स्टिग्मास्टेरॉल एग्जाम्पल है, कैंपेस्टेरॉल एग्जाम्पल है, सिटोस्टेरॉल एग्जाम्पल है। सो दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स बट दे शुड बी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स होने चाहिए। प्रिवेंट्स फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ओके, और एपोप्टोसिस ऑफ कैंसर करता है। और यहाँ पे जो मैंने कोरोनरी आर्टरी डिसीज लिखा है उससे मैं एक पॉइंट डाल देता हूं, इट डिक्रीजेस amount of excessive cholesterol in body।
ठीक है. It decreases the amount of excessive cholesterol in the body, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस वाज फाइटोस्टेरॉल. अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को. अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बोल देता हूं. फाइटोस्टेरॉल जो है, प्रेजेंस मैंने बताया नहीं. प्रेजेंस की अगर बात करें, सो दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल नहीं होता, उनकी सेल मेम्ब्रेन में फाइटोस्टेरॉल होता है. और ये भी वही काम करता है जो कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल मेम्ब्रेन में करते हैं. दैट इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड हेल्प्स टू स्टेबिलाइज lipids in the helps to stabilize the lipids in the membrane structure. ठीक है. दोनों का फंक्शन सेम है, बट वन इज फाउंड इन दी प्लांट्स ओनली, अनदर इज फाउंड इन दी एनिमल्स. ओके, प्लांट्स में दैट इज फाइटोस्टेरॉल और एनिमल्स में दैट इज कोलेस्टेरॉल. Okay, so now I'll talk about prostaglandins. ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ 20 कार्बन compound that is arachidonic acid. तो मैं लिख देता हूं प्रोस्टाग्लैंडिन्स are derived from arachidonic acid. Derived from arachidonic acid. ठीक है. They are derived from arachidonic acid, prostaglandins. Okay, they are secreted by the seminal vesicle. They are secreted by the seminal vesicle. They are secreted by the seminal vesicle, and they are also present in the vaginal fluid. कहाँ पे प्रेजेंट है? वजाइनल फ्लूइड में. काम क्या करते हैं? तो काम ये करते हैं कि दे हेल्प ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, और फिर आप जैसे कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्चुरेशन. They help in contraction of smooth muscle during parturition. Parturition is childbirth, आपको पता है. ठीक है. So prostaglandins की अगर बात करते हैं, so they are derived from arachidonic acid. They are secreted by seminal vesicles, present in vaginal fluid, and helps in contraction of smooth muscle during parturition. ठीक है. Simple and easy. So we'll move ahead. ठीक है. Okay, so now I'll talk about diosgenin. Okay, diosgenin की अगर मैं बात करूं तो it is extracted from
the tubers of Dioscorea plant है, ओके Dioscorea दैट इज द यम प्लांट, मैं नीचे लिख देता हूं. Dioscorea that is yam plant. ठीक है, तो डायोसजेनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया. किस काम में आता है तो पहले देख लेते हैं. इट हैज द सेम नेचर एज प्रोजेस्टेरॉन. सेम नेचर एज प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए इट वाज फर्स्ट यूज्ड in the development of, it was first in the development of birth control pills. In the year 1960s जब फर्स्ट बर्थ कंट्रोल पिल का डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके अंदर डायोसजेनिन को यूज किया गया था. आपको याद रखना है. ओके, कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? extracted from the tubers of Dioscorea. ठीक है, same nature as progesterone, first used in the development of birth control pills in the year 1960. ठीक है, it is also helps in increasing energy level. ठीक है, and also helps to increase sexual drive. It helps in increasing the energy level. एनर्जी लेवल बढ़ाने में भी काम में आता है. as well as it is also useful to in the increase, helps to increase the sexual drive of an individual. ठीक है, so that is diosgenin, which is a plant based derived lipid. ठीक है, प्लांट से आ रहे हैं, ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया. डायोस्कोरिया क्या, इट्स अ यम प्लांट. तो क्या हो गया, इट्स अ डिराइव्ड लिपिड फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, सो सेम नेचर एज प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए इट वाज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स इन द ईयर 1960. ठीक है, दूसरा अगर आप काम देखें तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, लिख लो आप डिटेल्स. एक और इसका इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो. इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में भी काम में आता है. ऑस्टियोपोरोसिस इज व्हेन योर बोन्स गेट पोरस. व्हेन यू गेट ओल्ड तो आपकी बोन्स का जो कैल्शियम कंटेंट कम हो जाने की वजह से वो पोरस हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डायोसजेनिन को यूज किया जाता है. ठीक है, चले आगे. सो नाउ विल टॉक अबाउट डिजिटॉक्सिन. किसके बारे में बात करेंगे? डिजिटॉक्सिन के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज डिजिटॉक्सिन? ठीक है, डिजिटॉक्सिन्स की अगर बात करते हैं, इट्स अ क्रिस्टलीन प्योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम
It is a crystalline, pure glycoside, I'm sorry, cardiac glycoside, obtained from Fox ग्लो प्लांट. क्या नाम है? फॉक्स ग्लो प्लांट, जिसको साइंटिफिकली कहा जाता है डिजिटालिस पर्प्यूरी, which is scientifically termed as digitalis पर्प्यूरी. ठीक है, मैं यहां पे तो डिजिटॉक्सिन क्या है? इट्स अ क्रिस्टलीन प्योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फॉक्स ग्लो प्लांट. ठीक है, अब यहां पे ये काम क्या करता है? क्यों इसको मैंने लिखा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड? इट वर्क्स एज अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ digitoxin works as cardiac tonic. ठीक है, small amount of digitoxin is going to work as a cardiac tonic. Tonic मतलब it improves health of heart muscles, health of cardiac muscles, आपका जो हार्ट है उसमें जो कार्डियक मसल्स है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है डिजिटॉक्सिन, बट इट शुड बी इन स्मॉल अमाउंट. ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिजिटॉक्सिन वर्क्स एज कार्डियक टॉनिक बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी और द हेल्थ ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है, बल्कि हायर अमाउंट्स ऑफ digitoxin is fatal. अगर आप ज्यादा अमाउंट में इसे लोगे सो दिस इज गोइंग टू बी फैटल, जानलेवा है. ठीक है, सो डिजिटॉक्सिन इज अ क्रिस्टलीन प्योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड. इट्स अगेन अ derived lipid obtained from a foxglue plant. मतलब ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अ प्लांट, फाइटोलिपिड हो गया. ठीक है, foxglue plant. Okay, small amounts of digitoxin is good because it would work as a cardiac tonic. Okay, improving the health of the cardiac muscles. ठीक है, बट अगर हायर अमाउंट में आपने ले लिया सो दिस इज गोइंग टू बी फैटल. आपका हार्ट काम करना बंद हो जाएगा एंड यू विल बी डेड. ठीक है, समझ में आ गया? सो डिजिटॉक्सिन्स हो गए. ठीक है, अब मैं एक और बात बताता हूं आपको. ओके, पुट इट डाउन, विल टॉक अबाउट इट. सो अपन ने स्टार्ट किया था एक टर्म से टर्पीन्स. आई मेंशनड टर्पीन्स. टर्पीन्स का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना भूल गया एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. टर्पीन्स को अगर कैनाबिनॉइड्स के साथ यूज किया जाए, okay, if terpenes are used along with cannabinoids, okay, तो ये क्या करते हैं? It increases the effect of the cannabinoid. मैं लिख देता हूं, टर्पीन्स को अगर कैनाबिनॉइड्स के साथ यूज किया जाता है सो इट इंक्रीजेस द थेरापेटिक इफेक्ट
ऑफ द ड्रग। जो ड्रग की हीलिंग एबिलिटी है, ओके, आपकी बॉडी में जाने के बाद जो ड्रग की हीलिंग एबिलिटी है, वो हीलिंग एबिलिटी को बढ़ा देगा कौन? टर्पीन। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स क्या ड्रग्स है। ठीक है, तो अगर आप कैनाबिनॉइड्स को टर्पीन्स के साथ लोगे तो क्या करेगा? वो टर्पीन क्या करेगा? सो टर्पीन इंक्रीजेस द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, दिस फिनोमिना और दिस इफेक्ट इज नोन एज एंटोरेज इफेक्ट। इसे क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज एंटोरेज इफेक्ट। दिस इज नोन एज एंटोरेज इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? सो एंटोरेज इफेक्ट क्या है? जब आप ड्रग्स को टर्पीन्स के साथ लोगे तो टर्पीन्स क्या करेंगे? उस ड्रग का जो थेरेपेटिक इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, जो हीलिंग इफेक्ट है, हीलिंग इफेक्ट जो है, उस हीलिंग इफेक्ट को क्या कर देगा? टर्पीन बढ़ा देगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द एंटोरेज इफेक्ट। इसे कहा जाता है एंटोरेज इफेक्ट। ठीक है, सो वी आर डन विद द लिपिड्स नाउ। वी आर डन विद द लिपिड्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो लिपिड वाला जितना भी पोर्शन था मैंने आपको कंपेटिटिव लेवल पे बता दिया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स। ओके, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, यू आर कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल द लेक्चर्स। जो मैं बोल रहा हूँ लेक्चर में, जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी सी छोटी डिटेलिंग, जो छोटी सी छोटी मैं बात बोल रहा हूँ, आप उसे सुनो, लेक्चर को एक दो बार अच्छे से देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर मैंने कोई चीज बोली, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है, तो मेक श्योर करो आप उस चीज को बोर्ड पे लिख लो, सॉरी आपकी नोटबुक में, आपके नोट्स में लिख लो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी आर डन विद द लिपिड्स नाउ। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। ठीक है, चलो बाय बाय।